Hello guys. Do we generally communicate like this? Hello guys, how are you? How was your day? How are you feeling? No, right? That is not how we generally talk or communicate or convey. So then, why is this the way of giving answers in speaking module of IELTS? So, how do we generally communicate? Just with the help of words? No, with the help of gestures, expressions, eyes movements and intonation. So, these are the factors that you should include while you are practicing the speaking. Now, before going further, I would like to spot certain problems that generally people face while speaking. एक मिथ है कि स्पीकिंग में जो टोन है, एक्सेंट है, वो फॉरेन जैसा होना चाहिए. नो, नॉट एट ऑल. बी नॉर्मल, बी नेचुरल. जैसे आप किसी स्ट्रेंजर के साथ में बात करते हैं तो क्या बनावटी एक्सेंट बोलते हैं? नहीं. You are being what you are. You be very normal, right, while you are speaking to a stranger. That is how you should be when you are going for your speaking exam. Now here in this video I am going to actually help you how to improve your speaking and what things you should take care. Generally people face issue while picking the tense of the answer. I would like to give you a smart idea over here how to identify the tense of your answer. Now the tense of question is the tense of answer. तो जब भी आप आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हो तो हमेशा फोकस करो कि क्वेश्चन का टेंस कौन सा है. इफ़ in case you are having issues to quickly identify the tense, what you can do is write down the tense. उससे आपका फोकस भी रहेगा उस टेंस के ऊपर and then you can comfortably deliver the answer. अब बात आती है फ्लुएंसी की. जनरली हम बहुत पॉजेस करते हैं, तो रीज़न क्या है इतने सारे पॉजेस का? लाइक पीपल add multiple pauses in just one sentence. What is the reason? Have you ever thought कि मैं इतना पॉज क्यों करता हूँ या पॉज क्यों करती हूँ? जनरली ये पॉजेस आइडियाज़ की वजह से होते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस में आइडियाज़ नहीं आ रहे या तो वर्ड्स नहीं आ रहे. अब ये दोनों का ही सोल्यूशन है, ऐसा तो है नहीं कि सोल्यूशंस नहीं हैं. जस्ट आपको उनको प्रैक्टिस करना है. अगर आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे तो आप रूटीन में जो भी चीज़ के आसपास आप आ रहे हैं, जैसे आप घर में घूम रहे हैं तो यू कम अक्रॉस फर्नीचर, you come across your parents, you come across the other family members, you come across newspaper, plants. So क्यों ना आप इन्हीं टॉपिक्स को लेके रोज़ आप थोड़ा थोड़ा उन पे सोचना शुरू करें. जैसे कौन से टाइप के प्लांट्स आपके घर में हैं, उन प्लांट्स के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हो, उनका यूज़ क्या है. फर्नीचर के आसपास आते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप आइडियाज़ डेवलप करो, न्यूज़ के रिगार्डिंग आइडियाज़ डेवलप करो. इवन जब आप कोई डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी आप कम्यूट करते हो तब आप क्या ऑब्जर्व करते हो. गाइस, यही सारी सिचुएशंस तो हमारे स्पीकिंग में पूछी जाती है. सो आइडिया की कहाँ कमी आई. नाउ द अदर थिंग इज़ वोकैबुलरी, कि यार वो सेकेंड पे वर्ड याद नहीं आया. इट्स ओके. अगर मुझे कोई वर्ड याद नहीं आता तो क्यों मैं पॉज करती हूँ, क्यों मैं रुक जाऊँ, क्यों ना उस वर्ड का डिस्क्रिप्शन सेंटेंस में दे दूँ. सो इससे एटलीस्ट आपका फ्लुएंसी गैप नहीं आएगा. It's okay not to speak that word. Instead you can just describe what that word means. That's it. Just try to practice these two methods. Okay, let's move further. क्योंकि स्पीकिंग एक स्किल है, अगर आप रोज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो you won't be able to
grow with a great, I can say, if you don't practice in your routine, you won't be able to come out of the restrictions that your mind creates when you are sitting to speak. So इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो गाइस, आप अगर डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे सुनते हैं, रोज़ आप एक प्रैक्टिस डालिए कि रोज़ आप अलग डॉक्यूमेंट्री सुने. रोज़ every day the topic that you are picking should be different, should not be the same that you saw or watched yesterday. अब क्या करना है? डॉक्यूमेंट्री पूरी कम से कम आधे घंटे की आप लीजिए, उसको समझिए, प्लस the words that you come across that are alien for you, or you think that I don't know the exact meaning of those words, note them down and find out the meaning of them. गाइस, जनरली वर्ड का मीनिंग ढूंढना अलग बात है, सिनोनिम ढूंढना अलग बात है. आप यहाँ पे मीनिंग ढूंढोगे, राइट? ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने पूरी डॉक्यूमेंट्री सुन ली, समझ भी ली, चाहिए तो आप नोट्स भी बनाओ. अब यू सिट इन फ्रंट ऑफ like a mirror or anywhere where you're alone. Keep your mobile recording on and explain and express the entire documentary. You should speak for at least 20 minutes. Yes friends, 20 minutes. अगर हमारा स्पीकिंग का टाइम मैक्सिमम 15 मिनट्स का है तो हमारी प्रैक्टिस उससे एटलीस्ट 5 मिनट ज़्यादा की होनी चाहिए. ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि द मोमेंट अ पर्सन रीचेज द काउंटर क्वेश्चन सेक्शन, उनको लाइक सांस चढ़ने लगती है, या दे फॉल शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, दे गेट टायर्ड, दे गेट एग्जॉस्टेड. ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर इन द एग्जामिनेशन रूम. So all these factors work in the performance. इसलिए it's always better to practice more. So अगर आप जस्ट इतना सोचो ना कि अगर मैं रोज़ 20 मिनट डॉक्यूमेंट्री बोलने की प्रैक्टिस करूँ, मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, अपना ही कंटेंट मैं सुनूँ, तो डोंट यू थिंक दैट डूइंग जस्ट दिस प्रैक्टिस फॉर अ मंथ will definitely change the quality of my delivering my content? And on top of that guys, अगर मैं रोज़ अलग डॉक्यूमेंट्री सुनती हूँ, so I might have heard till the end of the month I might have heard almost 30 documentaries. So 30 documentaries, 30 डॉक्यूमेंट्री के टॉपिक के टेक्निकल टर्म्स मेरे पास है, कंटेंट मेरे पास है. So friends, you just imagine that you might have spoken at least 30 different topics, purely academic topics. What else do you need to come out of this reserved mindset that मेरे बहुत fumble होते हैं, I am not able to get the ideas, मेरी fluency ठीक नहीं है. Guys, just this practice and you are done. प्लस मैं आपको ये भी एडवाइस करती हूँ, कभी कभी अगर आपका मूड हो तो अपनी स्पीच को, अपने आप को आप रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करो. उससे यू विल कम टू नो दैट हाउ आर योर एक्सप्रेशंस, हाउ आर यू डिलीवरिंग योर कंटेंट. सो इफ यू ऑब्जर्व योरसेल्फ, यू विल कम टू नो अ लॉट that when you are sitting and delivering a content, how are you looking, because आपका expressions, आपके hands gestures काफ़ी कुछ convey करते हैं. So you are not just speaking or giving answers, you are actually presenting your view. और एक बात, जितना स्ट्रॉन्ग और क्लियर आपका इमेजिनेशन होगा, उतना ही पावरफुल आपका स्पीकिंग का कंटेंट होगा. जनरली लोग सिर्फ इतना फोकस करते हैं कि मैंने कनेक्टर्स डाले कि नहीं, मैंने मेरे सेंटेंस के बीच में हाउएवर, मोरओवर, इन एडिशन टू ये डाला कि नहीं. नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ इतना डालने से मेरे को डिज़ायर स्कोर नहीं आएंगे. That means you have just I can say एक मैकेनिकल प्रिपरेशन की है.
You haven't done a natural preparation. Guys, don't you think that speaking is that platform जहाँ पे आप आपका पूरा thought process किसी के साथ share कर सकते हो और उसके लिए आपको bands मिल रहे हैं. So I advise you guys to speak what you actually feel in a very sophisticated and natural way. अब रही बात वोकैबुलरी की कि यार मैं बहुत सारे वर्ड्स रिपीट करता हूँ या बहुत सारे वर्ड्स मैं बहुत रिपीट करती हूँ, इसका क्या सोल्यूशन है? सो फ्रेंड, इसका बहुत इजी और सिंपल सोल्यूशन है. जैसे आपने रोज़ आपके कंटेंट को रिकॉर्ड किया तो आप खुद उसको सुनो और नोट डाउन करो कि कौन से वर्ड्स मैंने कितनी बार रिपीट किए. उससे आपको आइडिया आएगा. बिकॉज फर्स्ट थिंग, यू शुड नो योर सेल्फ, यू शुड नो व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू रिक्वायर टू डिलीवर. ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स मैं यूज़ करती हूँ वो आप भी यूज़ करते हो. तो इसलिए मुझे तो खुद को पहचानना पड़ेगा कि मुझे कौन से वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है. So friends, just note the words down so that you'll come to know that okay, I require these many words these many times, and then go ahead and search for the synonyms. But yes, again I would like to alert you, alarm you. जब भी आप कोई synonym सीखते हो तो 3 चीज़ें ध्यान में रखिए. फर्स्ट, वो सिनोनिम का आप इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल मीनिंग ढूंढिए. सेकेंड, वो वर्ड जो आपने अभी अभी सिनोनिम के रूप में यू हैव सेलेक्टेड और पिक्ड, उसका फॉर्म देखिए. क्या वो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? बिकॉज इन्हीं के बेस पे उसका यूसेज होना है. तीसरी चीज़ कि उस वर्ड का कोलोकेशन है क्या. कोलोकेशन मीन्स कभी कभार कुछ वर्ड्स अकेले नहीं आते, ग्रुप के साथ में आते हैं. जैसे हम बोलते हैं लम सम, टू सम एक्सटेंट. अब ये वर्ड्स हम साथ में ही बोलते हैं, इसे कहते हैं कोलोकेशन. सो आप ये भी चेक करिए. सो जब आप ये एक्टिव प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर अ मंथ करते हैं तो यू योरसेल्फ कैन एक्सपेरिमेंट. अगर आज तक आपने नहीं किया तो आज ही बैठिए, आज अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, मैं तो कहूँगी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और अपने कंटेंट को सुनिए. 1 महीने तक आपकी जो स्पीकिंग का नॉर्मल आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो करिए, पर साथ में ये भी जोड़ दीजिए, एड दिस प्रैक्टिस अलॉन्ग. And just check after a month that what is your quality. You will definitely find a noticeable positive difference in your manner of delivering, in your expression, plus in the quality of your content. Okay guys, so all the very best for you in the journey of IELTS.